लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, पर हम भी तो स्टार है ना। कि माना इस दुनिया की हो ही नहीं, अपनी ही दुनिया बनाऊंगी हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। They say hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. और आज ये वाकई में मेरे साथ हो गया। I've spoken on various platforms on different subjects, but I was destined to take the courage to share my life journey first in an amazing platform like this, Asmita. A beautiful initiative by Army Wives Welfare Association. Congratulations. Asmita, क्या मायने है इस शब्द का? अपनी पहचान, अस्तित्व, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी। कल जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी तो मुझे एक ख्याल आया, अगर मेरी कहानी का शीर्षक मैं अस्मिता देती हूँ तो बहुत सटीक होगा। धन्यवाद, आज मुझे अपनी कहानी का शीर्षक मिल गया, उसका नामकरण हो गया। I regard my story not that of a struggle, but a journey of self-discovery. Asmita. I come from a simple Jain Marwadi family. My parents inculcated in all their 5 daughters morals and values like respect, non-violence, peace, empathy, kindness, and always taught us to lead a healthy, disciplined, and content life. Born in a Jain family, I follow the traditions. I was very good in studies and extracurricular activities, be it sports, music, dance, elocution. Being the extrovert and bubbly girl I was. My parents were extremely proud when I topped the Madhyamik examination in school. And I got the award of Best All-Rounder Performance. जिंदगी चलती रही। मैं अपने फैमिली बिजनेस, हमारा लाइफ इंश्योरेंस सर्वेज और इंस्पेक्शंस का था। I got inclined naturally towards gaining some knowledge in the business and industry so that in future I could run my dad's business. पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। I got married at an early age and I had to leave all my academic courses incomplete. It took some time to accept and settle down. Being a dedicated person towards my responsibilities, I left no stone unturned in being a dutiful wife. Blessed with a beautiful daughter in the year 2000, I was a complete homemaker devoted to my family. Years later, when I unfolded the next chapter of my life, it exhibited the most difficult part of a woman's life. I stayed in an abusive marriage for 15 years. सोचती थी समाज क्या कहेगा अगर मैंने कोई कदम उठाया तो। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी शादी कैसे होगी, पापा किस किस को जवाब देंगे। 20-25 साल पहले separation was a taboo in Marwadi community, I think in every community. But one fine day I took the courage to take a step and walk out of that abusive marriage. For my self-respect, for my dignity. My life came to a standstill. I was battling depression. मैं किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहती थी। पापा मम्मी बोलते थे चलो। I used to fear. I had apprehension that people will ask me questions which I was not ready to confront. I went to great lengths to heal myself क्योंकि आशा मैंने कभी नहीं छोड़ी। I read self-help books, I watched motivational videos, attended events, listened to great speeches to heal myself. I practiced gratitude exercises and implemented the law of attraction to a great extent. All that helped me. After getting some footing in my personal sanctum, I turned my attention towards the more pragmatic areas of my life. My earnings and my financial stability. I didn't know what to do because I thought I'll look after my dad's business, but then it seemed
Not a good idea because I didn't have the degree to carry on his business, nor I had the practical know-how or experience. I kept introspecting, क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपनी जिंदगी आत्मनिर्भर होकर चला सकूँ, अस्मिता. After much contemplation, I realized that I was always good in communication skills, behavioral skills. I carried myself really well. So I thought, why don't I hone these skills and make a career out of myself? I took courage and embarked upon a new journey at the age of 42 and took up the course in image consultancy and soft skill training, borrowing the course fee from my father. My humble start began with small trainings, voluntary work in the Jain community, and I started to build my network. I was always in a secured environment. I never had exposure to the worldly affairs. I had no infrastructure. We need funds and infrastructure to start something new. I had none. I realized that battling and fighting in this tough world was difficult for me. But वो कहते हैं ना, when life throws challenges at you, first you accept, then adapt, and then finally you grow and evolve. Life can be the greatest teacher, and today I can humbly say that I have been a good student. The validation from my clients, the acknowledgement from different platforms helped me boost my confidence and also gave the validation that I'm on the right track. But there were moments of despair when I wanted to just give up on life also. I went to meet some college friends in a coffee shop. I came back very sad and disheartened. वो सब college में मेरे साथ थे. I was equally smart. I scored higher marks than them. मैं सोच रही थी यार मैंने अगर पढ़ाई की होती, अगर शादी नहीं होती, काश इतने सारे ifs. When my daughter stopped me and said, Mama, very few people have achieved what you have done in a span of 3 years. You have taken a giant leap and I'm super proud of you. Tears coursed down my cheeks. These words of appreciation from my daughter were the best award I ever achieved. There have been many beautiful moments in my training life. One of the touching moments when the spouse of my client or mentee called upon his birthday and said, Shashi ji, आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है. आपने मेरी बीवी, मेरी अर्धांगिनी मुझे लौटा दी. I had goosebumps and I patted on my back. Shashi, कुछ तो अच्छा किया है तुमने इस दुनिया में. I started working with NGOs and I realized that by helping others, I was healing myself. I was regenerating myself. I rekindled my lost spirit. Among various initiatives that I am part of, currently I am the Chief Secretary of Jito Ladies Wing Kolkata, an organization of 800 plus women where I work for social and educational upliftment. Among the social initiatives, the closest to my heart has been Parichay Ek Pehchan, where me and my team, we taught life skills under the banner Beyond Books to the children, underprivileged children of the villages and duars. The art of teaching is the art of assisting discovery. And after rediscovering myself, now I am helping others discover themselves and create an identity of their own. I call myself a constant work in progress. At the age of 45, I resumed my studies, which I had left incomplete in 1998. I got the degree of associateship. Remember, I told you I left all my academics incomplete. After 23 years, I got the degree of associateship from Insurance Institute of India. I was surrounded by self-doubts. जब मैं एग्जाम देने जाती सब young लोग होते, मैं सबसे aged होती थी वहाँ पे. And I used to tell myself, Shashi, it's okay. You are as young as your self-confidence and as old as your fear. वो करके अब अभी मैं फेलोशिप भी कर रही हूँ, which is the advanced degree, और सिर्फ 3 subjects बाकी हैं, and I am confident I'll do that also.
जो जिंदगी में सीखते रहते हैं, those who keep learning, keep rising in life. This qualification reinforces the thought that age is no barrier, and if we believe it, we can achieve it. There's a song by Lee Ann. If you get the chance to sit it out or dance, I hope you dance. And I'm glad I chose to dance. What I have learned in life is there are many who stay in such demeaning relationships, who compromise on their self-respect and dignity. Because one, they're not assertive enough to stand up for their rights the way I was. They are not financially independent, so they do not have the courage to step out of such demeaning relationships. Third, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? They think that the society will ridicule them, judge them, and that is why they don't dare to step out. What I will say is अस्मिता. अपने अस्मिता को कभी मत खोने देना, किसी के लिए नहीं, किसी हाल में नहीं, कभी भी नहीं. Self-respect is non-negotiable. You are the most important person of your life. You are the first love of your life. Secondly, what I learned is financial independence is paramount. हमें पता नहीं कब कुछ सब चीजें घूम जाएगी. When life will take a turn and it will throw us at crossroads. At least we should be able to manage our finances. We should understand our finances so that we can sustain and live our life with dignity independently. I am indebted to one person in my life, and that's my father, that old man sitting in the audience. He gave me the best gift a person could give to another person. He believed in me. Thank you, Papa. My sister is here, who is very unwell, but still she has come here to listen to my talk. My mom also. I'm blessed to have a family and friends who have been my backbone. I would like to summarize my earnings with the beautiful words of Emma Stone. There's no better representation of beauty than someone who's unafraid to be herself. I'll repeat. There's no better representation of beauty than someone who's unafraid to be herself. हे नारी, न देखना तुम किसी और की नजरों से खुद को, इस दुनिया के रस्मों रिवाजों और तौर तरीकों से खुद को. ये अहंकार भरी दुनिया तुम्हें सच कहां दिखाएंगी. तुम असल में क्या हो ये तुम्हें कभी नहीं बताएंगे. अगर देखना है खुद को तो मन की आंखों से देख लेना. ये बताएंगे तुम्हें कि तुम ही रचयिता, तुम ही सबसे सुंदर रचना हो. तुम ही मीठी सी लोरी, तुम ही सुनहरा सपना. तुम ही घर की लक्ष्मी, तुम ही घर का मुकद्दर हो. तुम ही पर्वत छूता आसमान, तुम ही गहरा समुद्र हो. ये बताएंगे तुम्हें कि तुम ही ज्वाला, तुम ही रोशनी हो. तुम ही शीतल, तुम ही शक्ति हो. तुम ही छांव, तुम ही धूप हो. हे नारी, न देखना तुम किसी और की नजरों से खुद को, इस दुनिया की रस्मों रिवाजों और तौर तरीकों से खुद को. मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और ये सम्मान दिया. धन्यवाद. जय हिंद. अस्मिता शब्द सच में सुना नहीं था. जब जानकारी करी कि इसके माने क्या हैं तो समझ में आया. पर मुझे यकीन नहीं था कि it would be so inspiring. I really have no words to convey to each one of you who have shared your stories. आपकी हिम्मत और जिस तरह से आपने अपनी कहानियाँ सुनाई, it is truly inspiring. So I'd like everybody to really clap for all our presenters for their wonderful, inspiring presentations. It's motivated me to tell you my story, which I don't normally do. It's a very small, short story, and the only reason I'm sharing with you, I think you'll understand after I tell you my story. I set up an organization called Indian Institute of Cerebral Palsy, who next year 50 साल पुराना होगा.
I have a son with cerebral palsy. और उसी की वजह से हम लोगों ने, a group of my husband and I and a group of friends got together and we thought कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 साल पहले यहाँ cerebral palsy उस ज़माने में spastic कहते थे, कुछ नहीं था. लेकिन सब लोगों ने जिन्होंने अपनी कहानियाँ बताई हैं, they've talked about family, they've talked about other people coming forward, and they've also talked about the army. My story, and although I say my, it's a story of the team at IICP, is linked with the army. The first school for cerebral palsy in the eastern region could not have begun with the help of the army. We began in the Baliganj military camp. And this was, at that time, I don't think anyone here is of my generation, so you wouldn't know that it was just a small little camp. There was a tin shed, ab to bahut badi building ban gayi hai wahan. But the army came forward and gave us 4 rooms. And that was the beginning of my story. So the link with the army is not just that Baliganj military camp. I happen to be an army officer's daughter. So it really goes a long way, and I'm so proud to be part of the army family. So thank you so much for inviting me. Thank you and all the very best. चाहती हूँ आपसे, लेकिन कैसा महसूस हो रहा है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, आप मुझे कैसे बताएंगे? जितनी जोर तालियों की गड़गड़ाहट होगी उतना अच्छा लगा आप लोगों को. तो कैसा लगा आप लोगों को? एक बार फिर से पूछती हूँ, हाँ, कैसा लगा आप लोगों को आज? Thank you so much. So I want to ask all our panelists today, first of all, what do they think about the idea that is Asmita? Asmita as a concept, as a program, उनको कैसा लगा? Let's hear it from our panelists. Ma'am, please आप थोड़ा बताइए. I think it's wonderful, and what really struck me was that I wish you could do something like this in my, I'm sorry you have to think my organization, to give a platform to all the mothers who actually struggle quietly, have inspired other families. So I think it's wonderful. It's a wonderful platform. Great, thank you so much. It means a lot for us. एक वो कहते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल सकता है. आज वैसी वाली थॉट आ रही है मेरे को मैम के वर्ड्स सुन के. मैम, योर थॉट्स प्लीज. जैसे कहानियों के बीच में भी बात की गई कि फौजी बीवियां हैं, वो फौजियों की एक स्ट्रेंथ है, वो उनके पीछे पार है. तो आज अस्मिता के माध्यम से उन अनसंग हीरोइंस को मौका मिला अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखने का, अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करने का. तो इसके लिए अस्मिता को और पूरी टीम को और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैनी कंग्रेचुलेशन. लोकेश जी, आपका आंसर तो मैम ने दे दिया, आपके मन के थॉट्स तो मैम ने बोल दिया, अब आप क्या बोलेंगे? मैं कॉल मैम से उनकी बात आगे ले जाना चाहता हूँ. मैम, जैसा मैंने सुबह कहा कि इसी फोर्ट विलियम से शुरुआत होती है अस्मिता की सोच की, और आज आपने जो यहाँ सोच रखी कि क्यों ना जितनी भी मदर्स हैं इंस्टीट्यूट में या अदरवाइज़ क्यों ना उनकी कहानियाँ भी बाहर आएँ, क्योंकि बाहर भी बहुत स्ट्रगल्स है. सो आई थिंक आइडिया इसी तरह से आगे बढ़ते हैं. एंड मेरे लिए ये अस्मिता एक बहुत ही हम्बलिंग मोमेंट है. जब पहली बार हमने ये डिस्कस किया और कहानियाँ सुननी शुरू की, दिल्ली से लेके अभी तक का सफ़र बहुत ही हम्बलिंग था. और ऐसा लगता है कि हम बेकार में ही अपनी तकलीफ़ों के बारे में सुबह शाम बात करते हैं. इनको सुन के तो लगा कि तो मुझे लगा कि जब भी अगर अपना गम बड़ा लगे तो इनके बारे में सोच लो और सडनली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी. एंड अस्मिता एक कोशिश यही है कि इन कहानियों को हम दुनिया के, हिंदुस्तान के एटलीस्ट हर कोने में ले जाए, ताकि जहाँ भी कोई भी महिला या कोई भी इंसान जो जूझ रहा है किसी भी सिचुएशन से, वो इन कहानियों को सुने और उसको ऐसा महसूस हो कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ. आई थिंक यही है अस्मिता मेरे लिए. वंडरफुल, वंडरफुल. थैंक यू सो मच लोकेश जी. मैम, आपसे मैं अगला सवाल मेरा आप लोग से ये है कि आज आपने हमारे 9 लेडीज़ प्लस एक गेस्ट स्पीकर को सुना, तो 10 कहानियाँ सुनी.
आपके मन में इस समय क्या एक सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या चल रहा है उन कहानियों को सुनने के बाद? कौन सी बात है जो आपके दिल को छू गई है? I think the word that strikes me is courage, हिम्मत, because सब ने हिम्मत दिखाई और सब ने हिम्मत सिखाई, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। आज कहानियाँ सुनने के बाद कोई एक बात जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई है जो आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ? Indeed, साहस only. It really needs a courage to come out and tell your story. So that is the biggest thing, I believe, courage. And the way you people have given them a platform to express it or to say it to people, that is also commendable. मैम यहाँ पे मैं आपकी ओपिनियन से डिफर करूँगी। हमने प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि हम इन कहानियों को सामने लेकर आ पाए। इसीलिए जो कहते हैं ना कि एक हाथ उठा और हाथ और आके जुड़ गए जो उसको साथ लेके साथ चलने के लिए तैयार हुए, तो इस चीज़ के लिए मैं आमी को और आपकी टीम को दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस करती हूँ। लोकेश जी। सो यू नो ऑफ कोर्स करेज तो बहुत कुछ करेज तो ऐसे सुनने को मिले जहाँ मतलब आदमी शेक, मैं तो शेक हो गया पूरा। और आप ये सोचिए कि मैं तो ये बहुत बार सुन चुका हूँ यहाँ स्टेज पे आने के पहले, हमने कल रिहर्सल्स में भी सुने, जब हम कहानियों पे काम कर रहे थे तब भी हमने सुना। तो ऑब्वियसली बहुत ही बहादुर है ये सब। मतलब कौन कहता है कि महिलाएं कमज़ोर है? आई थिंक दे आर वेरी वेरी ब्रेव एंड अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल यू करेजियस लेडी आउट देयर एंड द थ्री ऑफ देम हियर एंड द टू देयर। एंड मेरे लिए आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे इज़, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद से प्यार करो। अगर इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ then don't expect the world to love you. So no matter what, love yourself. I want to add something to that. सब करेज और साहस की बात कर रहे हैं। अपनी अचीवमेंट्स को दुनिया को बताने के लिए करेज नहीं लगता है, वो हम वैसे ही चिल्ला के बताना चाहते हैं। बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया, मैंने कहीं कुछ अच्छा कर दिया, मुझे कहीं रिकग्निशन मिला, वो सब बहुत आसानी से बता पाते हैं। करेज लगता है अपने लोएस्ट पॉइंट्स को, अपने सबसे डिफ़िकल्ट फेजेस को, जहाँ पे एक पॉइंट पे आप किसी को फेस नहीं करना चाहते थे, उन मोमेंट्स को इतने सब लोगों के सामने शेयर करने के लिए बहुत करेज लगता है। तो मैं बोलूँगी एक बार ज़ोर से तालियां हो जाए, क्योंकि एवरी स्पीकर टुडे वॉज वल्नरेबल इनफ, was courageous enough to share their most vulnerable moments with you all. आज उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बना लिया है, तो प्लीज़ वी मस्ट थैंक देम एंड वी मस्ट रियली अप्रिशिएट देम। सो एक राउंड और तालियों का। मैम हमने कहानियाँ सुन ली हैं, एक ट्रेंड हम होप करते हैं कि एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आर्मी वाइव्स की लाइफ वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, बोले ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। मैंने कहा ये सब मुझे भी करना होता है, लेकिन बच्चों को क्रैश में छोड़ना पड़ेगा, ये मुझे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कमांड आ गया है कि बैठना है मुझे, ये प्रोग्राम सुनना है, उसके लिए बच्चे को छोड़ना होगा क्रैश में। मे बी आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ हार्ट। नाउ व्हाट इज़ योर वन एडवाइस फॉर द, बिकॉज यू आर एन आर्मी डॉटर, आपको मालूम है आर्मी वाइव्स के चैलेंजेस के बारे में, आपका एक मैसेज क्या होगा आर्मी वाइव्स के लिए? आज हम अक्रॉस रैंक सब वाइव्स हैं यहाँ पर, आपका क्या एक मैसेज होगा? मुश्किल है एक मैसेज देना। या दो चार भी दे सकती हैं। आई थिंक आज ऐसे लगा, आज ही नहीं हमेशा से, बचपन से, कि आर्मी जो है एक परिवार है, और उस परिवार को हम लोगों ने, हमें नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। वो अपनापन, आप लोगों ने सब ने वो अपनापन दिखाया आर्मी के लिए, और उसके लिए हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। जस्ट ब्रीफली आपने कहा एक मैसेज, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक आर्मी से शुरू हुई है, लेकिन जहाँ भी एक टीम स्पिरिट हो, जैसे मैं शान से कह सकती हूँ कि IRCP में एक टीम स्पिरिट है, एक जने की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ही टीम स्पिरिट मैंने आज देखी है, और उसको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल, थैंक यू।
मैं ये कहना चाहूँगी, आज की हर स्टोरी में जो मैंने सुना, अगर एक औरत अपनी कहानी सुना रही थी तो उसके पीछे एक आदमी था जो स्ट्रेंथ बना हुआ था, कहीं किसी का पिता, कहीं किसी का हस्बैंड। तो मैं जो एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू माध्यम इस मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि सबसे पहले आर्मी के लिए बहुत बहुत बड़ा सत्कार है मेरे मन में, फ़ौजियों के लिए बहुत बड़ा सत्कार है। और मैं चाहूँगी अपनी बहनों से कि वो इन फ़ौजियों का खूब सत्कार करें जिन्होंने आपको मान दिया है, आपको इज़्ज़त दी है, आपको अपना जीवन साथी बनाया है। आप उनको समझिए। उन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कहीं घर के लेवल पे आ गया है, कहीं बच्चों को लेके आ गया है, कहीं स्कूलिंग को लेके आता है, कहीं आप कुछ काम करना चाहते हैं, वो आपकी हिम्मत बनते हैं। आप उनकी हिम्मत बनिए और आप उनको खूब सारी इज़्ज़त दीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ़ौजियों का बहुत सम्मान करें। वो सिर्फ़ बॉर्डर पे ही नहीं है कि जाके लड़ रहे हैं, वो बल्कि अपने घरों को, अपने परिवारों को एक बहुत बड़ी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, आपको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। उसके लिए उनकी खूब इज़्ज़त कीजिए और उनको बहुत बढ़िया से रखें और अच्छा समय उनके साथ, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ अच्छा टाइम बिताएं। इस बात के लिए मैं इस संस्था की भी बहुत प्रेज करना चाहूँगी जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आई एम ऑल्सो इन आर्मी लाइफ फॉर लास्ट 30 years, आई हैव सीन दिस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्ड थ्रू इन दीज 30 years। बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको पहले नहीं एड्रेस किया जाता था वो आज एड्रेस की जाती है। इसके पीछे किसका हाथ है? लोगों की विज़न का, फ़ौजियों की विज़न का, हमारे लीडर्स की विज़न का, उनकी मोटिवेशन का, उनकी स्पिरिट का। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है अपना सत्कार या अपना आदर उनको जताने के लिए। बट येस, आई एम फीलिंग वेरी स्पिरिटेड टू से दिस टू ऑल ऑफ यू that we have to give a big salute to Army for providing this all. Thank you. So my message will be कि अपनी कहानियों को सिर्फ इस अस्मिता के स्टेज तक ना रखें, क्योंकि ये बहुत आसान है करना कि चलो मेरा यहाँ पे नाम नहीं आया, मैं यहाँ स्पीकर नहीं थी, मतलब मेरी कहानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इतना बड़ा आवा का परिवार है, हर मेंबर की एक कहानी है, एक नहीं बहुत सारी कहानियाँ हैं। सो अगर आप रियली अस्मिता को देखना चाहते कि अस्मिता घर घर पहुँचे, मोहल्ले मोहल्ले पहुँचे, हर शहर, हर यूनिट, हर एड्रेस पे पहुँचे, तो मेरे हिसाब से ये जिम्मेदारी हर इंसान की बनती है जो आज स्टेज पे था या जो स्टेज पे नहीं था, कि अस्मिता के थ्रू आप सीखें और इसको एक मूवमेंट जैसा बनाएं, ताकि कोई भी इंसान, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये भी है कि आप आके अपनी आप बीती, जैसा अनुप्रिया ने कहा, अपना लोएस्ट मोमेंट, नॉट जस्ट हाई, इवन लोएस्ट मोमेंट आप शेयर कर रहे हैं। दैट शेयरिंग ऑफ स्टोरीज विल मेक दैट पर्सन फील सो गुड एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ कि वो आगे चल के और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। और अगर हम एक दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे तो मुझे लगता है अस्मिता का मकसद ही पूरा नहीं होगा। सो मेरा मैसेज यही है कि आज लंच ब्रेक के बाद इसे ना भूल जाएं और इसको आगे बढ़ाते हुए इसको और बड़ा बनाएं और हर इंसान की कहानी, हर आवा मेंबर की कहानी कोई ना कोई सुने उसे। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। Thank you so much, everyone. But before that, what's your message to everybody? Yes, I will not leave it. Okay, I will make sure that I give that message. आज सुबह जब मैंने बुक राइटिंग के ऊपर बोला तो मुझे लगा अरे किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि बुक लिखने की इच्छा है, कुछ नहीं है। तो टी ब्रेक में एक आई, मेरे पास मैम आई और बोले मुझे लगता है मेरे पास एक कहानी है, मैं लिखना चाहती हूँ। इतने भरे हॉल में जस्ट वन पर्सन केम आउट और मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो बोलने का, उस सेशन का पर्पस सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ऐसे मन में लगता है मेरी कहानी से कौन इंस्पायर होगा, किसको मोटिवेशन मिलेगा, यू डोंट हैव टू मेक अ डिफरेंस टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। हमें वो कॉम्प्लेक्स है। आई फील दैट व्हेन वी हैव सच अचीवर हस्बैंड्स,
husbands who make real impact, तो हमें लगता है हमारी लाइफ में क्या significance है, वो एक imposter syndrome आता है. Please don't let you affect that. Your story, if it impacts even one single life, please consider कि आपके life का purpose solve हो गया है, आपकी कहानी का purpose solve हो गया है. So आप लिखें, आप सुनाएं, आप बोलें, आप कुछ भी करें, पर अपनी कहानी को अपने तक सीमित ना रखें. आप प्लीज उसे शेयर करें. That's all that I want to say. I'm sure all of you have heard this word which is bandied around a lot, inclusion. आशा स्कूल आप लोग रन करते हैं. आपने ज़रूर सुना है कि children with disability, people with disability should be included in the mainstream. My appeal to IVA is, please can we think of doing something together which includes you and us, so that we can share our stories to give inspiration to the public, to make them understand that women are empowered and they can change mindsets and be leaders. So I would, Mrs. Kalita, you're sitting right in front, it would be wonderful if IVA and IICP could plan together to do something where we can inspire others. Thank you. Thank you so much. Thank you all the audience. And ये सिलसिला कहानियों का जारी रहे, हमारी यही उम्मीद है. और आज एक wonderful audience बनने के लिए अपने आप को तालियां बजा दीजिए please. Thank you everyone. I request all the panelists to please remain on the stage. Mrs. Shashi Jain. Mr. Lokesh Nathani. Ms. Anupriya Chaudhary. हमारे स्पीकर्स Mrs. Meenu, Mrs. Sanjana Nair, Mrs. Vidisha, Shashi. Mrs. Gargi, Mrs. Vaishali, Mrs. Nirupama, Mrs. Mithilesh, Mrs. Sangeeta, Mrs. Tanvi. आप सभी से अनुरोध है, प्लीज एक फोटोग्राफ के लिए मंच पर ही रुकें.
I request you all for a group photograph, please. I request all the मैं अस्मिता, मान हूँ, सम्मान हूँ। मैं ही खुशी की एक लहर, ना झुकी जो किसी डगर। मैं ही हंसी विश्वास की, मैं हूँ सामर्थ्य झांसी की। मैं गरिमा हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गांधी हूँ, सुभाष हूँ। मृत्युंजय अलौकिक प्रेममय प्रकाश हूँ। मैं अस्मिता, मान हूँ, सम्मान हूँ। मैं हूँ खड़क शिवाजी की, मैं हूँ खड़क शिवाजी की। मैं हूँ स्नेह सबरी की। मैं शक्ति हूँ, युक्ति हूँ। राधा की प्रीत में मीरा का संगीत हूँ। मैं अस्मिता, मान हूँ, सम्मान हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया पद्मश्री डॉक्टर सुधा कौल, रीजनल प्रेसिडेंट आबा व उपस्थित सभी को लंच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।